Hello everyone. So today we are going to discuss an important and an integral topic of sociology, that is society. The term society is derived from Latin root socius, which means companionship or friendship. So we can say that the very root of the word society tells us its meaning, that is togetherness. Socius means companionship, friendship, or we can say association, or and it indicates that human beings cannot live in isolation. They will always need others for physical, emotional, and social needs. जैसे for example, a single thread cannot be used to make a cloth. A single person similarly cannot make a society. But only when the threads are woven together, cloth come into existence. Similarly, when people live together with companionship, society is formed. A man lives in the company of other people. A man lives in the company of other people. फ्रॉम बर्थ टिल डेथ हर एक इंसान जो है वो किसी ना किसी के साथ होता है. एज अ बेबी यू आर सराउंडेड बाय योर फैमिली. इन यूथ यू आर सराउंडेड बाय योर फ्रेंड्स, टीचर्स, और एडल्टहुड में यू आर सराउंडेड बाय योर कॉलीग्स, योर रिलेटिव्स, or even any community members. So, man is always surrounded by people and relationships. If you even think about your own life, you will spend time with your family at home, with classmates or colleagues in school, office, or with friends in your leisure time. So we can say that there is no stage of life where you live completely alone. Man is a social animal. We have used this statement said by Aristotle. It simply means that being social is part of human nature. Humans को सिर्फ खाना या रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए होती, but उन्हें they also want love, belonging, and interaction. And without society, humans cannot even develop fully. Alright, next point is man live in towns, cities, tribes, and villages, but never alone. Loneliness brings him boredom and fear. Man needs society for his living, working, and enjoying life. Society has become an essential condition for human life to arise and to continue. Human life and society always go together. इसका सिंपल सा यही मतलब है. चाहे वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिटीज़ में रहे, कोई टाउन में रहेगा, कोई बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेगा, कोई ट्राइब्स में रहेगा, कोई रूरल विलेज में रहेगा, लेकिन वो कभी भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि अकेले रहने से वो बोर हो जाएगा और उससे उसमें फियर भी डेवलप हो जाएगा. और complete loneliness is always harmful for humans. It leads to problems like anxiety, fear, and depressions. And humans are designed for interaction, and lack of it would obviously disturb their mental health. For example, during the COVID-19 lockdowns, people felt extremely stressed and depressed because they were cut off from their regular social life. और इवन तो उनके पास फूड या शेल्टर था भी, तब भी lack of company made their life extremely difficult. So we can say that society fulfills both basic and higher needs. For living, it provides food, clothing, shelter. For working, it provides education, jobs, economic system. For enjoyment, it provides festival, entertainment, and companionship. Just like a baby who cannot survive alone, only because of the, जैसे आप एग्जाम्पल लो एक फिश का, वो कभी भी वाटर के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती. तो ऐसे ही सिमिलरली ह्यूमन बीइंग है, वो कभी भी आउटसाइड ऑफ सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं कर सकता. चाहे आप मॉन्क्स का एग्जाम्पल ले लो, जैसे जो लोग संन्यास ले लेते हैं, वो भी मॉन्क्स भी आगे जाकर मोनेस्ट्रीज में रहते हैं, जहाँ पे उन्हें दूसरे मॉन्क्स उनके जैसे लोग मिलते हैं. चाहे वो सोसाइटी से टेक्निकली सेपरेट हो रहे हैं, बट वो अपनी स्मॉलर कम्युनिटी हमेशा फॉर्म करते हैं. कोई भी कभी भी अकेला सर्वाइव कर ही नहीं सकता. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सोसाइटी. Definition of society. So we have referred two definitions. One is of MacIver and one is of Morris Ginsburg.
दोनों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस में सोसाइटी का मतलब हमें समझाने की कोशिश किया. So let's read them. Society is a web of social relationship. मकाइवर ने हमें ये एक्सप्लेन किया that society is not simply a collection of social people. It is relationships among them that form the society. For example, a stadium full of strangers. We cannot say it is a society, but the same people can form the society if they interact as friends, classmates or co-workers. मतलब इसमें आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया सोशल रिलेशनशिप्स की, सोशल रिलेशनशिप्स के पॉइंट पे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, मॉरिस गिन्सबर्ग. Society is a collection of individuals united by certain relations or mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior. So, Ginsburg has stressed that societies are formed when individuals follow common patterns of behavior, values, or relations. These common behaviors unite them and distinguish them from outsiders. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल सोसाइटी फॉर्म करेंगे क्योंकि बिकॉज दे शेयर द सेम प्रोफेशन, ट्रेनिंग, वे ऑफ वर्किंग. सिमिलरली रिलीजियस कम्युनिटीज फॉर्म होंगी, सोसाइटी को फॉर्म करेंगी बिकॉज ऑफ शेयर्ड रिचुअल्स एंड बिलीव्स. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सोसाइटी. द फर्स्ट फीचर इज society consists of people. So we can say that people are the raw material of society. Institutions हो, customs हो, culture हो, वो human beings के बिना exist ही नहीं करेगा. अगर आप एक रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल लो तो विदाउट पैसेंजर्स कोई मतलब है रेलवे स्टेशन का. सिमिलरली सोसाइटी का भी कोई मतलब नहीं है लोगों के बिना, इंडिविजुअल्स के बिना. एक और एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी का. फिजिकल बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इज नॉट यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. वो यूनिवर्सिटी तभी बनेगी जब उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करेंगे आपस में. ये खाली कैंपस इज जस्ट लैंड एंड बिल्डिंग्स. सोसाइटी इज एन अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स. और अगर लोग होंगे तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं होगा, therefore there would be no society. Next slide, mutual interaction and mutual awareness. Interaction means continuous communication, exchange and cooperation among people. और without interaction society exist ही नहीं कर सकती. अगर आप एक क्लासरूम को एक सोसाइटी बोल रहे हो तो वो इसीलिए है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे हैं. अगर सारे चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई बात ही नहीं करेगा, कोई इंटरैक्शन ही नहीं होगी, कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ही नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या सोसाइटी फॉर्म होगी. इट इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल. इसका मतलब है सोशल इंटरैक्शन वो हमेशा दो साइडेड है. इट इज़ ऑलवेज टू साइडेड. बोथ द पार्टीज have to both the parties affect and respond to each other. जैसे for example in a shop where a seller offer goods and the buyer pays, so both act and react. If only one would react and the other would ignore, interaction would break down. It is described as a process in which people influence and understand each other's thoughts and actions. So we can conclude interaction is not just a physical contact. It is about influencing ideas and behavior. जैसे for example हमारे पेरेंट्स हमारी वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसे ही चिल्ड्रन भी इन्फ्लुएंस करते हैं पेरेंट्स को बाय इंट्रोड्यूसिंग देम टू न्यू टेक्नोलॉजी. हमारे पेरेंट्स हमें कल्चर ट्रेडिशन के बारे में बता रहे हैं और आजकल की सोसाइटी में बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को नई आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं. A person remains a part of society as long as they maintain relationship with others within it. So we can say the moment a person loses all connection with others, he ceases to be a member of society. For example, a hermit living in total isolation in the forest
can be said to be living outside of a society. And in essence, society exists through continuous interactions among individuals, and its boundaries are defined by the extent of these social interactions. So we can say that the geographical area is not important. What matters is the interaction. Society's boundaries are set by how far these relationships extend. For example, Indian society extends across the nation because Indians interact with each other through common institutions like festivals and values. Obviously, geographical border है हमारे पास, but society एक सोसाइटी तभी बनेगी जब हमारे जो आपस में लोग इंटरैक्ट करेंगे. सोशल इंटरैक्शन becomes possible only through mutual awareness. अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, म्यूचुअल इंटरैक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस. इंटरैक्शन हमने पढ़ लिया कि दो लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे. म्यूचुअल अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब people must recognize and acknowledge each other. Awareness is the key to interaction. For example, two strangers sitting silently on a bus, they're not socially connected, but if for instance one asks for direction and other responds, so we can imply that awareness creates social contact. Society exists only when people act toward each other in ways shaped by this recognition. So we can say that people's behavior must change based on their awareness of others. For example, drivers मतलब खुद ही स्लो हो जाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेडेस्ट्रियंस ने रोड क्रॉस करनी है. अब अवेयरनेस के बिना तो एक्सीडेंट्स होंगे ना. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दैट विदाउट सच अवेयरनेस सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट. Therefore, a social relationship necessarily involves mutual awareness. इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है, interaction plus awareness together form the foundation of society. So the next feature is society depends on likeness. The foundation of society lies in the principle of likeness. इसका मतलब है सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब लोगों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हो. लाइकनेस इज द बेसिक ग्लू जो इंसान को एक साथ बांधता है. क्लासरूम का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो सब स्टूडेंट्स एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं, दैट इज पढ़ाई. दैट कॉमन गोल उन्हें एक कम्युनिटी बनाता है, उन्हें एक सोसाइटी बनाता है. सोसाइटी डेवलप्स अमंग इंडिविजुअल्स हु शेयर certain similarities in body and in mind. इसका मतलब है that likeness दो तरह की हो सकती है, फिजिकल या फिर मेंटल. फिजिकल लाइकनेस मतलब एक ही स्पीशीज होना और मेंटल लाइकनेस यानी कि एक सेम वैल्यूज या गोल शेयर करना. जैसे स्पोर्ट्स टीम्स आर बिल्ट ऑन फिजिकल एबिलिटीज वी कैन से, एंड ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल पार्टीज जब भी बनते हैं वो मेंटल बिलीव्स हमारी आइडियोलॉजीज पे बनते हैं. किसी की लेफ्टिस्ट मेंटालिटी होती है, किसी की राइटिस्ट मेंटालिटी होती है, उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज भी बनती हैं. लाइकनेस रेफर्स टू these commonalities such as needs, occupation, goals, ideals, values and perspectives on life. जब लोगों की नीड्स और सोच सिमिलर होती हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है. जैसे फार्मर्स को पानी और बीज की ज़रूरत है, ये नीड उन्हें ग्रुप बनाती है, तो फिर वो कॉपरेट मतलब अपना ग्रुप बना के किसी के पास जा सकते हैं कि हमें सब्सिडी दो, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया. स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक एग्ज़ाम पास करना है, वो भी एक सिमिलैरिटी है जो उन्हें कनेक्ट करती है. जस्ट as the saying goes, birds of a feather flock together. Human beings belonging to the same species, Homo sapiens, share many traits in common, which make social life possible. इसका मतलब है जैसे लोग एक जैसे होते हैं, मतलब जो लोग एक जैसे होते हैं नेचुरली वो एक साथ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक लवर्स कॉन्सर्ट्स में मिलते हैं, रिलीजियस लोग मंदिर में मिलते हैं. तो जो ह्यूमंस हैं लाइक वो ऑलरेडी उनके लाइक सेम फीचर्स हैं, सो दे ऑलरेडी शेयर कॉमन इंस्टिंक्ट्स और इसी वजह से सोसाइटी नेचुरली बनती है.
So next point is society rests on differences too. पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि लाइकनेस यानी कि सिमिलैरिटी होनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सोसाइटी फॉर्म करने के लिए डिफरेंसेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सिमिलैरिटीज इम्पॉर्टेंट है। लाइकनेस यूनिटी बनाता है और डिफरेंसेस इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करता है, और दोनों ही सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट टीम है, उसमें सिर्फ बैट्समैन नहीं होता, उसमें बॉलर्स, विकेट कीपर्स और फील्डर्स सब अलग रोल्स प्ले करते हैं, और उनकी ये डिफरेंसेस ही टीम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। If everyone were exactly the same, social relationships would be minimal with little scope for exchange. अगर सब एक जैसे होते तो किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। जब तक स्किल्स और रोल्स अलग हैं, तब तक कॉपरेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब डॉक्टर बन जाएं तो फार्मर कौन होता, और अगर सब फार्मर्स होते तो टीचर्स और इंजीनियर्स कहाँ से आते। So we can say that without differences, life would be dull, monotonous and uninteresting. So we can say that variety is the spice of society. Differences ही society को dynamic और exciting बना रहा है। अगर सब एक ही कपड़े पहने, एक ही खाना खाएं, एक ही तरह सोचें, तो लाइफ बोरिंग होगी और इवेंचुअली सोसाइटी भी बोरिंग हो जाएगी। इनोवेशंस और क्रिएटिविटी तभी आएगी जब डिफरेंसेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर। एवरी सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट्स डेवलप इट्स ओन डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ नोन एज कल्चर। कल्चर इज लाइक अ ब्लूप्रिंट जो बताता है कि एक सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपना लाइफ कैसे जीते हैं, सोचते हैं और बिहेव कैसे करते हैं। जैसे इंडियन कल्चर्स में फैमिली और फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानीज कल्चर आप देखो तो वहाँ पे डिसिप्लिन और एक दूसरे को रिस्पेक्ट की वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एज लिंटन डिस्क्राइब्स, कल्चर इज द सोशल हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड। हेरिटेज का मतलब है कि ये चीज़ें हमें जन्म से नहीं मिलती बल्कि सीखने से मिलती हैं। कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अपने पेरेंट्स से लैंग्वेज, मैनर्स और कस्टम सीखते हैं, ये उनका कल्चरल हेरिटेज है। तो वी कैन से कल्चर इज अ हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड। हर ह्यूमन को कल्चर हेरिटेज में मिला है, कोई भी पैदा नहीं होता कल्चर के साथ। कल्चर मतलब कल्चर सीख के कोई पैदा नहीं होता। इट इंक्लूड्स एटीट्यूड्स, morals, values, institution, science, philosophies, etc. मतलब we can say that culture में सब कुछ आता है, आपके manners, political system, religious beliefs, education system और scientific progress. For example, democracy is a part of political culture. Yoga is a part of Indian culture. Individual freedom ये एक part है western culture का. Culture reflects human nature through ways we live, think, behave and act as members of society. For example, इंडिया में एल्डर्स को प्रणाम करने का एक कल्चर है, वैसे ही वेस्ट में हैंडशेक या हग ज़्यादा कॉमन है। कल्चर एंड सोसाइटी आर इनसेपरेबल येट दे आर नॉट द सेम। कल्चर जो है इट इज़ द वे ऑफ आवर लाइफ और दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। What differentiates one society from another is culture. अब जैसे इंडिया और चाइना है, दोनों एशियंस नेशन तो हैं, बट लेकिन उनकी लैंग्वेज, फूड, ट्रेडिशन उन्हें डिस्टिंक्ट सोसाइटीज़ बनाते हैं। दोनों सेम सोसाइटी तो है नहीं, इंडियन सोसाइटी और चाइनीज सोसाइटी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनलाइक एनिमल्स, ओनली ह्यूमन पोजेस कल्चर। जो एनिमल्स है ना वो सिर्फ इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है वो लिटरेचर क्रिएट करते हैं, मॉरल्स, लॉ एंड रिलीजन्स को क्रिएट करते हैं, जो कि सिर्फ आता है कल्चर से। जैसे एक काऊ है, उसे सिर्फ ग्रेजिंग करना ही आता है, लेकिन वो कभी क्रिसमस या दिवाली तो नहीं सेलिब्रेट करेगी। जो ह्यूमन है वो फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस को इन्वेंट करेंगे और वही उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है सोसाइटी इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस। A key feature of social relationship is interdependence. कोई भी इंसान या ग्रुप पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं।
जैसे एक फार्मर है, वो फसल उगाता है, डॉक्टर जो है वो वी कैन से हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, और जब टीचर है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और ये सब एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। द फैमिली इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड वुमन। तो यहाँ पे हमने एक फैमिली का एग्जाम्पल दिया, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल सोशल यूनिट। जैसे हस्बैंड और वाइफ, वो एक दूसरे पे इमोशनल और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए डिपेंड करते हैं। चिल्ड्रन जो है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और पेरेंट्स अपने ओल्ड एज में बच्चों पे डिपेंड करते हैं। एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस इंटरडिपेंडेंस एक्सपैंड। फॉर एग्जांपल, आज एक इंडियन इंजीनियर है, यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करता है, एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा है। सो वी कैन से दैट जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है उसने इंटरडिपेंडेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इन मॉडर्न टाइम्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट कम्युनिटीज, ग्रुप्स एंड नेशंस आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया ऑयल के लिए मिडल ईस्ट पे डिपेंड करता है, और वेस्ट आईटी सर्विस, हमने कई बार सुना है कि लाइक बहुत ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो वी कैन से दैट नो कंट्री कैन सर्वाइव अलोन। इसी तरह से सोसाइटी में भी कोई भी आदमी बिना अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे हमेशा किसी ना किसी की कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। Next point is society is dynamic. Society is never static. It is constantly changing. चेंज ही एक परमानेंट फीचर है सोसाइटी का। हर जनरेशन नए रूल्स और सिस्टम्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के दौर में शायद जो मैरिज थी वो ज़्यादातर अरेंज्ड होती थी, लेकिन अब काफ़ी लव मैरिजेस भी कॉमन हो गई हैं। तो इस सोसाइटी में हमने चेंज इवॉल्व होता हुआ देखा है। Like the flowing water of river, society is always in motion. सोसाइटी कभी एक जगह नहीं रुकती। नदी का पानी जैसे हमेशा बहता रहता है, वैसे सोसाइटी भी इवॉल्व करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के टाइम पे क्लासरूम्स में हम स्लेट होती थी, ब्लैक बोर्ड होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। सो ये एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ओल्ड ट्रेडिशंस फेड व्हाइल न्यू इमर्ज। सेम वही बात है, जैसे पहले के टाइम पे हैंड रिटन लेटर्स थे, लेकिन आज उनकी जगह व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम, सो मतलब हम लोग ये सारे सोशल मीडिया एप्स यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। चेंजेस में टेक प्लेस स्लोली और सडनली। अब जो चेंज है उसका पेस सिमिलर नहीं होता। अब कुछ चेंज है जो कि बहुत टाइम ले रहा है, और कुछ है जो कि सडनली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो एक स्लो चेंज था, लेकिन जब भी कोविड-19 जब आया तो आपने देखा कि स्कूल्स और ऑफिस एक रात में ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। सो वो एक बहुत ही फास्ट पेस पे हमारा चेंज हमने अडॉप्ट किया। So the last point is social control. Every society develops its own mechanisms to regulate the behavior of its members. While cooperation exists, society also faces competition, conflicts, tensions, revolts, and suppression, which often arise from clashes of economic, political, or religious interests. If left unchecked, these forces could threaten the very fabric of society. Hence, behavior and activities must be controlled. जैसे एक बात बताओ, सोसाइटी है, अब सोसाइटी में फॉर एग्जांपल किसी ट्रैफिक सिग्नल पे बिना रेड लाइट के आप इमेजिन कर सकते हो, केओस मच जाएगा पूरा। ठीक है, हर जगह एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। अब जैसे अगर कहीं पे मान लो हमारे देश में कहीं पे दंगे हो जाए, रियॉट्स हो जाए, तो अगर कोई कंट्रोल ही ना करो तो पूरी इकोनॉमी और हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी सोसाइटी की। इसीलिए कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी एम्प्लॉयज बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल्स में आपके आते हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मैनर्स, एटिक्वेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप शादी में जाओ किसी को और अगर आप कुछ बदतमीजी करो तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो एक
तरह का इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल हो जाएगा। वो कहेंगे आपको कस्टम्स की, ट्रेडिशन की वैल्यू नहीं है, आपको तमीज़ सिखाने लग जाएंगे। फॉर्मल मीन्स इन्वॉल्व लॉ, लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस कोड्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो तो पुलिस आपको फाइन करेगी। ये कंट्रोल्स ही हैं जो सोसाइटी को स्टेबल और डिसिप्लिन बनाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में है कंक्लूजन। सोसाइटी गिव्स मीनिंग एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन लाइफ। बिना सोसाइटी के एक इंसान की लाइफ बस सर्वाइवल होती है, लेकिन सोसाइटी ही है जो उसे मीनिंग और वैल्यूज देती है। इट नर्चर्स यूथ एंड सपोर्ट्स एडल्टहुड। एग्जाम्पल, फैमिली और स्कूल बचपन में नर्चर करते हैं, जॉब्स और इंस्टीट्यूशंस एडल्टहुड में सपोर्ट करते हैं। सोसाइटी एग्जिस्ट बोथ विद इन अस एंड अराउंड अस। बाहर के कस्टम्स और लॉस तो होते ही हैं, लेकिन अंदर से भी हम अपने मॉरल्स और बिलीव्स के थ्रू सोसाइटी को कैरी करते हैं। इट शेप्स आवर बिलीव्स, मॉरल्स एंड आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, पैट्रियोटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ऑनेस्टी, ये सब हम सोसाइटी से ही सीखते हैं। एंड आवर ग्रोथ एंड नीड्स आर फुलफिल्ड बाय सोसाइटी ओनली। Emotional growth through family, we can say, intellectual growth through education. Society develops our personality but also regulates it. For example, आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने का चांस जो है वो सोसाइटी ही देगी, लेकिन उसके रूल्स, सोसाइटी के रूल्स ही आपको अपनी पावर का मिसयूज करने से रोक देंगे। Society encourages the development of personality while at the same time guiding and regulating our talents and abilities. So this was it for this topic, society. I hope you understood it. और next lecture में हम लोग next topic देखेंगे. So if you like the video, please like, share and subscribe, and also comment down